Assalamualaikum student. Today is our third lecture of revision, class 9. Chapter name is dynamics. Our first topic name is Newton's first law of motion. The Newton first law of motion statement: a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion along a straight line with uniform velocity until and unless unbalanced external force acts on it. It's mean हमें यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जब भी कोई बॉडी हालत सकून में हो या रेस्ट की हालत में हो, वो तब तक अपनी हालत चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर कोई बॉडी मोशन की हालत में है, वो तब तक अपनी हालत को चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। Newton's second law of motion statement is when net force acts on a body, it produces an acceleration in the body. The direction of the net force, the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the body. Statement हमें बताती है A is directly proportional to F. Acceleration is directly proportional to force and acceleration is directly proportional to the mass of the body. जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? A is directly proportional to F by m. यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है और k की वैल्यू हमारे पास 1 है। A इज इक्वल टू F बाय m। यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू ma। हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? For every action there is always an equal and opposite reaction. हमें यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम जब बुलेट को गन में से फायर करते हैं तो गन का एक्शन क्या होता है कि उसमें से बुलेट फायर होती है, और रिएक्शन क्या होता है? ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है कि बुलेट जो गन है वो हमें पीछे की तरफ पुश करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताता है? Static friction acts because the body tends to move when a force is applied on it. This friction comes into play when a body is forced to move along surface but movement does not start as. The magnitude of static friction remains equal to the applied external force and the direction is always opposite to the direction of motion. The magnitude of static friction depends upon coefficient of static friction and net normal reaction of the body. F is net normal, F is the force of static and R is net normal reaction of the body. And R is Fs is directly proportional to R, where R is equal to weight of the body, weight is equal to mg. Put equation 2 in 1, Fs directly proportional to mg and Fs equal to जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू जो है, म्यू एस जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। F इज इक्वल टू म्यू के एंड R। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है?
Number 1, advantages. It is due to friction that we can walk or run on the ground. Number 2, brakes of the vehicles also work due to friction. Number 3, nuts, bolts and screws remain tight only due to friction. Number 4, friction enables us to drive nails to join different things. Number 5, some animals climb on tree only due to friction. ये तो हमारी रोज़मर्रा की एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शंस की, जो हम रोज़मर्रा में भी अपने एक्सपीरियंस करते हैं। और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है? Due to friction, the moving part of machinery, tires of vehicles and soles of shoes etc. wear out. Due to friction, the temperature of machine rises, causing problem in them. A part of energy is wasted to overcome the resistance against motion. डिसएडवांटेजेस भी हमारे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस में से ही हैं कि हमारी रोज़मर्रा में डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या हैं। ये टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़े थे। अभी आपकी रिवीजन क्लास है और आप लोगों को अभी और भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या बताती है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कल एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। हम आगे इसकी फर्दर मैथमेटिकल फॉर्म डिफाइन करते हैं। हमारे पास a body of mass m which is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The centripetal force acting on the body is Fc is equal to mv square upon r. According to Newton's second law, F is equal to ma, where a is a linear acceleration. Similarly, in the case of circle motion, Fc is equal to ac. Here a is the centripetal acceleration. हमारे पास Fc इज इक्वल टू MAC, हमारे पास Fc की वैल्यू पुट आई है तो हम उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। MAC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mm से कट जाएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। A reaction another force which is equal to the magnitude of centripetal force but opposite in direction is produced which is called the centrifugal force. इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। हमारा यहीं पे है, ये पूरा चैप्टर एंड होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। डेफिनेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म्स, न्यूटन्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ मोशन, ये सब बहुत अच्छे से याद करेंगे और मुझे अच्छे से इसका फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।